Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to discuss about the second poem of grade 11 Hindi book from Tamil Nadu State Board. So let's see what is the second poem. The name of the second poem is Surdas. So कवि परिचय means introduction about the poet. कवि के बारे में जानकारी. उनका जन्म सन 1483 लगभग around 1483 सूरदास was born. मृत्यु उनका सन 1563 को हुआ था. He was died on 1563. सूरदास के प्रारंभिक जीवन के संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती. So there is no proper evidence, proper information of great poet Surdas. There is no proper information of early life of Surdas. प्रारंभिक जीवन means early life of Surdas. There is nothing written in history. वल्लभाचार्य से भेंट होने से पहले वे गौघाट पर नवधा भक्ति में से दास्य भक्ति को अंगीकार कर विनय संबंधी पदों की रचना किया करते थे. So before he met Vallabhacharya, he used to write some devotional song, and those songs will be limited and 2 lines, 3 lines poem he was writing at that time. वल्लभाचार्य से भेंट होने पर उनके आदेश से सूरदास ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ किया. So once after he met to Vallabhacharya gave advice to him that you go and you narrate all the beautiful things. So whatever happened during the birth time to end of the life of Lord Sri Krishna. So at that era, this perfect Lord Sri Krishna, whatever he did in during that era, you have to narrate it in a book very beautifully. वे अंधे थे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शास्त्र श्रवण, चिंतन, भगवान का कीर्तन, कीर्तन के अनुरूप विविध विषयक पदों की रचना और संतों की मर्यादा के अनुकूल परिभ्रमण करने में व्यतीत किया. So from by birth he was blind. He used to spend whole his life, whole life by thinking about God, by listening all Vedas, doing some kirtans and writing some beautiful poems. And he used to roam here and there and just spreading his magic, his devotional magic everywhere. भक्ति के निरूपण में उन्होंने वासुदेव परंपरा में प्रचलित पौराणिक घटनाओं का कहीं-कहीं आश्रय लिया है. So he used to refer this Vasudev Parampara, which is a mythological book where all the mythological stories are narrated. So he used to take help of that book whenever he was writing this Sursagar. उनकी रचनाओं में सूर सागर प्रसिद्ध है. उनकी रचनाओं में क्या प्रसिद्ध है? सूर सागर प्रसिद्ध है. Most of the time this was a this is going to ask us a 1 mark question. सूरदास जी का रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना क्या है? आपको लिखना है सूर सागर. सूर सागर में श्री कृष्ण के आसपास की सारी सृष्टि में उन्हें अपना सखा मानकर उनकी प्रत्येक लीला में भाग लेती हैं. So whatever narrated regarding Lord Sri Krishna in Sur Sagar, you feel like that you are also a active participant in those incidents. कवि ने राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का जो वर्णन किया है उसमें मानव हृदय सुख दुख के भावों से स्पंदित होता रहता है.
Here, Kavi means the poet Surdas also here narrated all the love and affection between Lord Sri Krishna and Radha ji. So whenever a normal human being is keep on reading these things, he also felt like all the emotion, whether it is a sad moment, whether it is a very pleasant moment, whether it is a very happy moment. So everything he is yeah, a normal human being. Whenever they are going to read this book, they used to feel that. पाठक means those persons who are reading this book Sursagar. पाठक श्री कृष्ण के हंसने के साथ हंसता है. Whenever Lord Krishna was laughing, reader also laughing. उनके रोने के साथ रोता है. Whenever Shri Krishna ji was crying, reader also crying. और उनकी श्रृंगारिक चेष्टाओं में रागात्मिकता वृत्ति का अनुभव करता है. So whatever the emotion are narrated and whatever Lord Shri Krishna was feeling at that time, according to the book Sursagar. So if anyone going to read that book, he also feel the same thing. सूर द्वारा वर्णित श्री कृष्ण अपने मानवीय रूप को छोड़ अति मानव और कहीं कहीं अलौकिक रूप को धारण करते हैं. That means in Sur Sagar, the poet Surdas narrated about Lord Sri Krishna. Sometimes he represents Sri Krishna as a like normal human being. Sometimes he narrated some strange miracle or some extraordinary thing which normal human being can't do. So उसी से पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण मानव के अवतार में आए थे, लेकिन वो कहीं कहीं अपने अलौकिक रूप भी धारण करके असंभव घटनाओं को भी उन्होंने कुछ मोड़ दिया है. So यह पहली दिस इज फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम और पहली कविता है. सो इसमें बहुत सारी कठिन शब्द है और उसका सप्रसंग व्याख्या हम करेंगे. छाड़ी मनहरी विमोखन को संग, जाके संग को बुद्धि उपजित है, परत भजन में भंग. कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान निभावे गंग. स्वर खर को कहा अर्गज लेपन, मरकट भूषण अंग. पाहन पतित बान नहीं बेधत, ऋतु करत निशंग. सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दुजई रंग. दोबारा दोहराते हैं. छाड़ी मनहरी विमुखन के संग, जाके संग कुबुद्धि उपजित है, परत भजन में संग. कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नुहावे गंग. खर को कहा अर्गज लेपन, मरकट भूषण अंग. पाहन पतित बान नहीं बेधत, ऋतु करत निशंग. सूरदास खलकारी कामरी, चढ़त न दुजई रंग. उसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हुए. छाड़ी, छाड़ी मीन्स छोड़ो. छोड़ो का अंग्रेजी में अगर आप इसे बोलो तो गिव अप. हरि विमुखन के संग, इसका मतलब हुआ ईश्वर विरोधी का साथ. That means who was totally against of God and you are going to be friend with that person. जाके, जाके means जिसके, जिसके means whose. कुबुद्धि, कुबुद्धि का मतलब हुआ दुर्बुद्धि और you can tell it as evil mind, evil mind. उपजित है, पैदा होती है. To shoot forth. In English, the meaning is to shoot forth. परत भजन में भंग, भगवत भजन में विघ्न पड़ता है.
In English, you can tell it as comes disturb in prayer. Chugna, chugana. Chugana means खिलाना. To feed. Swan. Swan का मतलब हुआ कुत्ता और dog. नहाना, स्नान करना. To take bath. अरगज. अरगज ये चंदा, केशर आदि मिलाकर किया हुआ एक सुगंधित लेप है. दैट इज यू कैन टेल इट एज अ काइंड ऑफ scented lotion or a kind of scented pack. मरकट. मरकट मीन्स बंदर. बंदर मीन्स मंकी. पाहन. पाहन का मतलब हुआ पत्थर. पत्थर मीन्स स्टोन. नहीं बेधत. नहीं तोड़ता है. doesn't break. ऋतु. ऋतु का मतलब हुआ रिक्त. रिक्त. रिक्त स्थान. रिक्त मीन्स empty. निसंग. निसंग का मतलब तरकस. तरकस means quiver for keeping the arrows. So whenever bow and arrow, we are just playing with that, na, in our pack. That particular thing is there where we are going to store those arrows. That is known as quiver. खल. खल का मतलब हुआ दुष्ट. दुष्ट persons are wicked. कमारी. कमारी का मतलब हुआ कंबल, ब्लैंकेट. दुजो. दुजो का मतलब दूसरा और अदर. अब भावार्थ देखते हैं. आपको लिखना होगा, अगर आप पहले प्रसंग लिखेंगे. प्रसंग को आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद कृष्ण भक्ति काव्य के अमर गायक सूरदास द्वारा रचित किया गया है. या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह पद प्रसिद्ध गायक सूरदास द्वारा रचित है. इस पद में उन्होंने अपने मन को समझाते हुए कहा है कि हे मन, तू दुष्टों की संगति छोड़ दे. उनकी दृष्टि में दुष्ट वही है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है. जो भगवान से विमुख है, अर्थात जो भगवान को नहीं मानता, वही दुर्जन और खल है. सूरदास मानते हैं, सूरदास was believing that those person who never believe in God, who never go to any temple or praying to God or bow down their head in front of God, they are not a good person. They are very evil persons. So we shouldn't be keep friendship with those persons. हे मन. हे मन मीन ओ माई हार्ट. जो भगवान से विमुख रहता है, उसकी संगति छोड़ देना. Means who doesn't like the God and who never bow down their head in front of God, don't be close with them or don't be have friendship with them. You have to leave them. जिसके साथ रहने से दुर्बुद्धि पैदा होती है और भगवत भजन में विघ्न पड़ता है, उसका संग छोड़ देना चाहिए. Because if you are going to have friendship with those persons who never believe in God, and by unknowingly their evil mind will control you, and in your side also this evil nature will be created. And you initially you were very devoted to your love Lord, but what happened with the friendship, keep on friendship with that particular evil person, your character also changed and you also follow that evil person. So आपका भगवान के प्रति मन विमुख होता है. आप भगवान के सामने नहीं जाते हो, भगवान को पूजते नहीं हो, भगवान के बारे में चिंता नहीं करते हो, तो आप भी उसी के तरह हो जाते हो. जो दुर्बुद्धि व्यक्ति का बुद्धि होता है, उसी तरह आपकी बुद्धि भी हो जाती है. तो इससे अच्छा है कि हमें उस व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए. उस व्यक्ति के साथ दोस्ती या फिर कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहिए. कह सकते हैं कि अपनी संगति में उसमें परिवर्तन लाऊंगा
उसको हरिभक्त बनाऊंगा, लेकिन यह संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि नहीं, हमें इसके साथ दोस्ती नहीं तोड़ना चाहिए, इसके साथ संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। हम अगर वो हमसे जुड़ा रहेगा तो हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर हैविंग, so he gradually accept those characters, but actually it is not going to possible. ये संभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? Why here? Surdas is giving one beautiful example. क्या कोई को कर्पूर खिलाने से वह सफेद बनता है? मतलब आप अगर आ, कौवा को कपूर खिलाते हो, कौवा मीन्स क्रो, सो कौवे को आपने कपूर खिलाया, कैम्फर, कैम्फर इज वेरी white in color, so if you are giving that camphor to that crow to eat, his color is not going to change because by burn he is black. कुत्ते को गंगा में नहाने से क्या वो पवित्र बनेगा? कुत्ता मीन्स डॉग, डॉग यूजुअली live in a very dirty places. Their nature is like that. If you take the holy river Ganga, water of holy river Ganga, and you take bath to that particular dog with that water, he is not going to be holy, or he is not going to be very sacred. गधे के बदन पर चंदन आदि सुगंध द्रव्य लगाने से क्या फायदा होता है? गधा मीन्स डंकी. इफ यू आर अप्लाइंग ऑल दिस scented lotion over the whole body of this donkey, the smell, the stinky smell, the very dirty smell, or the very uh, uh, bad smell which is coming from the body of this donkey is not going to change. बंदर के अवयवों में आभूषण पहनाने से क्या वो सुंदर दिखेगा? अवयवों में मीन्स आप अगर ज्वेलरी वी आर यूजिंग इन आवर ईयर, neck, leg portions like anklet we are used to wear in our legs, and necklace in our necks, earring in our ears. Similarly, if you are giving all this jewelry to any monkey, and if you are going to your इफ यू आर गोइंग टू, अगर आप उसे जाके बंदर को ये सब पहनाते हो, आभूषण, आभूषण का मतलब हुआ अलंकार, अलंकार या फिर ज्वेलरी, ये सब सारे चीज अगर उसे पहनाते हो तो बंदर कोई खूबसूरत नहीं दिखेगा, बंदर बंदर ही दिखेगा. monkey has to see like a monkey, he won't be a beautiful queen. सो ये सभी प्रयत्न जैसे व्यर्थ हो जाते हैं. प्रयत्न मीन्स चेष्टा, या फिर दस वट एवर यू आर गोइंग टू ट्राई ऑल दिस थिंग्स, लाइक इफ यू आर गोइंग टू फीड camphor to the crow, if you are going to ask the dog to take bath in the holy river Ganga, if you are applying the scented lotion over the body of the donkey, or you are applying all the ornaments over the body parts of a monkey, they are not going to change. Their characteristic, which is inbuilt, which is there from their birth time, it is going to be there. So whatever you are going to try, it is just not going to fruitful. वैसे ही दुष्ट को सज्जन बनाने का तेरा प्रयत्न भी व्यर्थ हो जाएगा. सिमिलरली, who are evil person, if you try your level best to make them as a good human being, very down to earth persons, or very uh, good nature persons, it is not going to possible. This is useless. uh, अगर कोई धनुर्धारी पत्थर पर तीर छोड़ता है तो वह तीर पत्थर को तोड़ता नहीं, उल्टे अपनी इस मूर्खता के कारण वह धनुर्धारी अपने तर्कस को ही खाली कर देता है. सो तर्कस से अगर बहुत सारे रहते हैं धनु, धनु
सॉरी तीर रहते हैं, अगर कोई धनुर्धारी उस तर्कस से एक करके एक तीर निकालता है और उस तीर को निशाना बांध के उस पत्थर पे छोड़ता है तो क्या होगा? एक के बाद एक तीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तीर कहीं पे भी पत्थर को नहीं तोड़ सकता, उल्टा उसका तर्कस खाली हो जाएगा। Turkus means quiver. Suppose one person who is having so many arrows inside the quiver, so he is trying to target those arrows on a stone, big stone. That stone is not going to break. Instead of that, his quiver is going to empty because all the arrows is going to be useless. It is those are going to be damaged. याद रखो, दुर्जन काले कंबल के बराबर है। सो दुर्जन मीन्स दूरजन, जिस जन की बुद्धि खराब है, या फिर जो खराब आदमी है, जो खल आदमी है, जो दुष्ट व्यक्ति है, that person who is wicked or who is very bad, who is evil minded. So here poet is comparing that person like a black blanket. उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। That means if you apply any color on the black blanket, it is not going to change to other color. It will remain black. Similarly, if you try your level best, if you give 100% to convert, to change a evil person to a good or better human being, it is not going to possible. उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, अर्थात दुर्जन कभी भी सज्जन नहीं बन सकेगा। जितना भी आप कोशिश करो, दुर्जन काले कंबल की तरह होता है। उसको आप जितना अच्छा व्यक्ति बनाना चाहो, आप जितने अच्छे शिक्षा दो, आप जितने भी अच्छी अच्छी खबर अच्छी अच्छी नीति शिक्षा देते हो, वो कुछ भी नहीं समझता है, वो वही दुर्जन का दुर्जन ही रहेगा, वो कभी सज्जन नहीं बन सकेगा। Clear, student? I hope you understood. Next. Next one is प्रभु मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। एक नदिया एक नार, कहावत मैलो नीर भरो, जब दो मिली एक वरन, भय सुरसरी नाम परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण अब गुण न चितवे, कंचन करत खरो। यह माया भ्रमजाल कहावे, सूरदास सगरो, अब की बार मोही पार उतारो, नहीं पन जात डरो। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हुए। समदर्शी, समदर्शी 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 का मतलब हुआ सब पर समान दृष्टि रखने वाला। That means that person who is a dispassionate. तिहारो, तिहारो means तेरो, तेरो का मतलब हुआ यूज। नार, नार का मतलब नाला। ए revive, you can tell a revive. मैलो, मैलो का मतलब हुआ मैला और डर्टी थिंग। एक वरन, एक वरन का मतलब हुआ एक रंग वाला, सेम कलर। बधिक, बध करने वाला। कसाई, वध करने वाला और कसाई, कसाई का मतलब हुआ those who are going to kill others animals, like in a chicken center, mutton center, they are killing the animals, so those are known as कसाई। पारस एक पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। सो पारस इज अ मैजिकल स्टोन। इफ यू this stone is going to touch anything, if it is going to touch iron also, it is going to convert into gold. स्पर्श मणि, इसे स्पर्श मणि भी
बोला जाता है। चित्तवे देखता है। खरो खरो का मतलब हुआ खालिश। सगरो सारा और सब। पन्न जात टरो प्राण टल जाता है। पन्न जात टरो का मतलब हुआ प्राण टल जाता है। सो इसकी सप्रसंग व्याख्या कुछ इस प्रकार हुआ। भगवान शरणागत रक्षक है। शरणागत रक्षक है मतलब भगवान के चरणों में जो आता है, who comes to the love Lord or to the God without keeping any evil things inside his or her heart. That means pure persons, purely if he is coming to the God, or he is going to surrender in front of God, then God is going to save him or her from any obstacle. भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे, उसके गुण और अवगुण पर ध्यान न देकर मैं उनको अपना लूंगा। मतलब भगवान के पास अगर कोई भी पूरी श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से मतलब विथ द बॉटम ऑफ हिज हार्ट he is going to surrender in front of the God, then God is not going to consider any good qualities or bad qualities. Good means आपके अंदर जो गुड क्वालिटी है, अवगुण मीन्स जो बैड क्वालिटी है, जो इविल क्वालिटीज है, उस पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। भगवान आपके फीलिंग्स को देखते हैं, आप कितने स्वच्छ मन से, निर्मल मन से, हाउ क्लैरिटी from bottom of your heart you are. So those things God is going to look inside you. अगर आप मन से निर्मल हो और भगवान के पास जाते हो, तो भगवान आपके गुण, कितने अच्छे गुण हैं, कितने बुरे गुण हैं, कितने क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने बुरा किया, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और वो आपको अपना लेते हैं। उनका उद्धार करूंगा अपना लेते हैं, और जो भी कुछ आपके जीवन में जितना भी कुछ प्रॉब्लम रहता है, जो भी कुछ होता है, आपको उद्धार कर देते हैं उससे। आपके दुख कष्ट सारे हर लेते हैं, सारे ले जाते हैं। भगवान भक्त के अनन्य भाव को ही देखते हैं, अतः वे समदर्शी हैं। उसका मतलब हुआ समदर्शी मीन्स हु आर गोइंग टू सी एवरीवन इक्वली। भगवान के दरबार में सब समान है, चोर भी समान, अच्छा आदमी भी समान, बुरा आदमी भी समान। भगवान सबको समान दृष्टि में देखते हैं, लेकिन फर्क क्या है, आपको अपने हृदय से भगवान के पास जाना है, अपने हृदय को निर्मल करके उनके पास सच्ची मन से जाना है, सच्चे मन से। हाँ भगवान जी, मैंने ये सब किया, ये गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। सच्चे मन से अगर आप उनके पास जाते हो, तो आपको कोई भी गुण अवगुण नहीं देखते हैं, वो आपको आपके अनन्य भाव को ही देखते हैं और आप सबको समान दृष्टि में देखते हैं। उनकी इस प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर सूरदास भगवान से कहते हैं, मेरे भी अवगुण पर ध्यान न देकर मेरा उद्धार करो, अन्यथा तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। सो हियर ऑल्सो सूरदास टेलिंग टू his love Lord Shri Krishna, oh God, please don't consider my all the qualities, whether it is a good quality or bad quality. Especially, he is stressing importance on bad qualities. Don't consider my all the bad qualities. So whatever the evil things I did in my life, whole life, don't consider that, and just bless me. आप मेरे उद्धार कर दीजिए और मेरे अवगुणों को ध्यान पर ना दीजिए। नहीं तो आपने जो प्रतिज्ञा की है कि मेरे दृष्टि में सब समान है, भगवान की दृष्टि में सब समान है, यह उक्ति और यह वाक्य मिथ्या हो जाएगी, झूठ हो जाएगा।
हे प्रभु, मेरे अवगुण पर ध्यान न दो। तुम्हारा नाम समदर्शी है। अपने इस नाम को सार्थक बनाना चाहते हो तो मेरा उद्धार करो। देखो, एक प्रवाह है जिसे नदी कहते हैं, दूसरा है नाला जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। सो यहाँ पर भगवान सूरदास भगवान जी को कहते हैं, भगवान आप सबको समान दृष्टि में देखते हैं, सब आपके लिए समान है, तो मेरे अवगुण ना धरिए। और आप एक बात देखिए, एक प्रवाह है, दैट इज अ फ्लो। प्रवाह मीन्स फ्लो, जिसे हम नदी कहते हैं। नदी मीन्स रिवर। सो इन रिवर देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर। सो रिवर इज वेरी प्योर एंड रिवर ऑल आर गंगा, यमुना, ऑल आर वेरी होली रिवर्स नेम्स। सो होली वाटर इज फ्लोइंग इनसाइड दैट रिवर। दूसरा है नाला। नाला का मतलब हुआ ड्रेन, जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है। सो इन ड्रेन ऑल द वेस्टेज वाटर ऑफ आर फ्लोइंग। सो यह नदी है, वह नाला जब एक में मिल जाते हैं, गंगा गंगा में मिलकर एकाकार धारण करते हैं। सो नाला का पानी मैला है। द वाटर ऑफ द ड्रेन इज वेरी डर्टी एंड द वाटर ऑफ गंगा रिवर इज वेरी pure and very holy water. So whenever both the waters, this dirty water as well as this good water, holy water, they are going to unitedly uh, going to mix with the sea water. So there is no you can't identify which one is the dirty water, which one is the holy गंगा रिवर्स वाटर। सो दोनों मिलकर एकाकार धारण करते हैं। जब उसका सुर सरिता देवलोक की पवित्र नदी नाम पड़ता है। इसी प्रकार दो लोहे की वस्तुएं हैं, जिनमें एक पूजा गृह में रखी गई है और दूसरी कसाई खाने में, लेकिन पारस इन दोनों का फर्क नहीं करता, छूते ही दोनों को खाली सोना बना देता है। सो another example also here, poet Surdas giving that one iron type thing is there. We are using that particular iron in our puja room, and another was going to use in any chicken center, mutton center. Those persons are using to kill those animals. So whenever this paras stone is going to touch both the iron things, they are converting to gold. Paras is not making any difference between uh, those things which is made up of iron. So similarly भगवान आपको भी कोई दुष्ट व्यक्ति या कोई सज्जन व्यक्ति, दोनों में कोई फर्क करना नहीं चाहिए, दोनों को समान दृष्टि में देखना चाहिए। छोड़ दीजिए इन सब बातों को, क्योंकि तर्क वितर्क की ये बातें माया या भ्रमजाल कही जाती है। सो हियर Sudas is telling that just leave all these arguments or any positive point, negative point, all these arguments, just leave it because these are nothing but illusion. मेरी विनती यही है कि बार अब की बार मेरा उद्धार करो, अन्यथा मेरी तुम्हारी प्रतिज्ञा असत्य हो जाएगी। सो at last Surdas is just praying in front of love Lord Sri Krishna. Just he is praying in front of God that you don't think about all these things, all the examples whatever I gave, but you just blessed me. I need your blessing. If you are not going to bless me, then whatever the thing you say that all are equal all in front of me, this statement is going to be false. यह वाक्य, यह प्रतिज्ञा भगवान जी आपकी मिथ्या हो जाएगी, ये बोलते हैं सूरदास। Then come to the third one. मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो तू, जसुमती कब जायो। कहा कहूँ इस रीस के मारे, खेलन हूँ नहीं जातू,
पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हारो तातु गोरी नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर चुटकी दई दई हंसत बाल सब सीखई देत बलबीर तू मोही को मार न सिखी दाऊही कबहू न खिजोय मोहन को मुख रिस समेत लखी जसुमती सुनी सुनी रिझो सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही कऊ धूत सूर श्याम मो गोधन की शऊ हऊ माता तू पुत। सो उसके शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हुए। दाऊ दाऊ का मतलब हुआ बड़ा भाई। बड़ा भाई यहाँ पर कौन है? बलराम। श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम है। सो श्री कृष्ण इज द यंगर वन एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ श्री कृष्ण इज लॉर्ड बलराम। खिजायो खिजायो मीन्स चिढ़ाना, चिढ़ाया। इफ यू आर टीजिंग समवन। मोसो मोसो मीन्स मुझसे। से टू मी। मोल को लीनो मोल लिया हुआ। मोल लिया हुआ मीन्स have bought। जायो जन्म दिया। जायो मीन्स जन्म दिया। और गेव बात। ऋष ऋष का मतलब हुआ गुस्सा और रोष एंगर जिसे आप बोलते हैं। हाउ हाउ मीन्स मैं माई सेल्फ और आई सेल्फ। तातु तातु का मतलब हुआ पिता फादर। कत कत मीन्स क्यों कैसे वही हाउ। चुटकी दई दई चुटकी बजा बजा कर। To snap the fingers like we are doing now, to snap the fingers similarly। चुटकी बजा बजा कर। सिखाई दे तो सिखा देते हैं। दाऊ ही कबहू न खिजो बड़े भैया पर कभी क्रोधित नहीं होती। चबाई चबाई मीन्स चुगलखोर। चबाई का मतलब हुआ चुगलखोर, a backbiter who never speak in front of you but in the back he is just keep on talking about you. That is known as a backbiter। Then धूत धूत का मतलब हुआ ध्रुत। ध्रुत means cunning। गोधन की शऊ गायों की कसम गायों की कसम। oath of cows oath of cows। सो यह कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पद है। सो दैट स्टांजा पोएम इज taken from the childhood childhood incident of Lord Shri Krishna। शिशु कृष्ण अब बालक बन गया है। So very small little infant Krishna now became a boy। स्मॉल लिटिल बॉय वो दूसरे बालकों के साथ खेलों में भाग लेने गया। लगा खेलते खेलते ना जाने बालकों में स्पर्धा ईर्ष्या असूया आदि कितने भाव पैदा होते हैं। सो व्हेनेवर you all are playing with each other with your friends, at that time you are also fighting, you are also jealous about your friends। Similarly whenever Lord Krishna also playing with his friends, the same type of feelings arises among them। जब बालक कृष्ण खेलते थे उनके दोस्तों के साथ तभी गुस्सा आता था, ईर्ष्या आता था, ये सब भाव पैदा होते थे। बालक कृष्ण के साथ भी यही बात हो गई। दूसरे बालकों के साथ उसका झगड़ा हो गया। झगड़े में उसका बड़ा भाई बलराम भी उन लड़कों के साथ हो गया। सो whenever those boys started fighting with Krishna and Krishna ji also started fighting with those boys, at that time Krishna's elder brother Balram, he also supported those uh, other boys instead of supporting his own younger brother Lord Krishna।
सब मिलाकर कृष्णा जी को चिढ़ाने लगे, खिजाने लगे, मीन्स चिढ़ाने लगे। कृष्णा इसकी शिकायत माँ यशोदा से करता है। सो इमीडिएटली कृष्णा लेफ्ट दैट प्लेस एंड ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर यशोदा। माँ, मुझे भैया ने बहुत खिजाया है। वो मुझसे कहता है कि तू मोल लिया हुआ है, लड़का है। यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया? क्या कहूँ? इस गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता। माँ, सो यहाँ पर कृष्णा जी दौड़ के आते हैं और बोलते हैं माँ जी, उनकी माँ यशोदा से कि भैया ने मुझे बहुत छेड़ा है, बहुत चिढ़ाया है। वो मुझसे कहते हैं कि मैं आपका गोद लिया हुआ बेटा हूँ। Means here Balram is telling that Yashoda didn't give birth to you, Krishna. When she gave birth to you, and she might have from somewhere. Bought you from somewhere like that. Just Balram teasing Lord Sri Krishna. So these all are hurted Lord Sri Krishna, and he is complaining all these things in front of mother. So he is also saying that due to these things I am getting anger. That's why I am not going to play with those boys. वह बार बार कहता है कि तेरी माता कौन है, तेरा पिता कौन है? नंद और यशोदा दोनों गोरे हैं, तब तुम क्यों श्याम शरीर के हो? श्याम शरीर के मीन्स काला। श्याम का मतलब काला हुआ। कृष्णा जी काले थे। सो यहाँ पर बलराम कहते हैं कि तुम्हारा हु इज योर मदर, हु इज योर फादर? कृष्णा, नंद एंड यशोदा बोथ आर वेरी फेयर, वेरी ब्राइट इन कलर। सो नंद और यशोदा दोनों तो गोरे हैं, लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों श्याम रंग का है, क्यों काला रंग का है? और आप बोलते हो कि नंद मेरे बाबा है और यशोदा मेरी माता है, ये कैसे हुआ? बलबीर ये बातें अन्य बालकों को सिखा देता है और वे सब चुटकी बजा बजा कर हंसते हैं। यहाँ पे बलबीर बलराम जी को कहा गया है। कृष्णा बोलते हैं कि बलराम जी ये सारी बातें दूसरे बच्चों को सिखा देते हैं और दूसरे बच्चे भी मेरे मजाक उड़ाते हैं, मीन्स कृष्णा जी के मजाक उड़ाते हैं। तूने तो मुझे ही को मारना सिखा है, भैया पर कभी गुस्सा नहीं करती। कृष्णा ये बातें गुस्से के साथ कहता है। सो हियर कृष्णा जी कंप्लेनिंग इन फ्रंट ऑफ हिज मदर दैट यू ऑलवेज beating me, but you never tell anything, or neither scolding to Balram, brother Balram. So these all are things Krishna was telling very angrily. मोहन कृष्ण के गुस्से से भरे मुख से इन बातों को सुनकर यशोदा का मन आनंद में भर जाता है। सो जब माँ यशोदा ये सब सुनती है और कृष्णा जी का गुस्सा रूप दिखती है, छोटे बच्चे जब गुस्सा करते हैं तो माँ के मन में एक तरह का खुशी जागता है। सो वही खुशी भी यशोदा जी के मन में जागता है। वो कहती है कृष्णा सुनो, बलभद्र चुगलखोर है। So here again Yasoda Maya or Mother Yasoda is telling to Sri Krishna that listen to me Krishna, Balram is a backbiter and he is very cunning also, वो धूर्त भी है। By burn he is very cunning. मुझे गायों की कसम, I am taking oath of the cows. गाय means cow. So कसम means oath. So I am taking, who is taking the oath of cows? यशोदा is taking the oath of cows कि मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरा पुत्र है। वात्सल्य रस का सुंदर उदाहरण यह पद है। So यहाँ पर here यशोदा taking oath of the cows to make Krishna ji believe that she is her mother. So don't listen to Balram. सो यहाँ पर एक माँ और बेटे की ममता का एक सुंदर उदाहरण दिया गया है इस पद में। जब कृष्णा जी गुस्से में ये सारी बातें बलराम जैसे उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके रंग को जैसे चिढ़ाते हैं, क्यों आप काले हो, आपके माता पिता नंद यशोदा है लेकिन वो दोनों तो गोरे हैं, आप क्यों काले हो, ये सारी बातों की बखान जब वो उनके माँ के आगे करते हैं तो माँ खुशी हो जाती, माँ के मन में एक तरह का खुशी जागृत होता है।
बाद में वो अपने बेटे को समझाती हैं कि बलभद्र बहुत चुगलखोर है और वो जन्म से ही धूर्त है। तो उसकी बातों पर यकीन मत करो, मैं अपनी गायों की कसम खा के कहती हूँ, तू ही मेरा बेटा है और मैं ही तेरी माँ हूँ। सो यहाँ पे एक माँ और बेटे का वात्सल्य रस जो कि एक ममता का है, उसका सुंदर उदाहरण दिया गया है। So this is all about this poem. Thank you, students. Thanks for watching this session. I hope you like it. Thank you.